Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all in online support program. I am your computer teacher Musharraf Taseem and I am from APS Askari 14 Rawalpindi campus. I hope you all are doing well. I welcome you all in your second year class as you all are promoted from the first year to the second year, and I would like to inform you that you have to gear up your speed. You have to work more harder than you were doing in your first year classes, as in first year the content of your syllabus was entirely theoretical based. Only the database chapter was the one that need your attention. But when it comes to the programming, now you have you have stepped into the second year class, and now you are going to do the programming in C language, C++ language, and that is slightly technical rather than the first year content, and I would ask you all to please pay attention on that. Okay students, so welcome to the introduction. First of all, I would suggest you to purchase your textbooks from the market or whatever the method is for availing them, and the book you are going to study in your second year class is the textbook published by the National Book Foundation, and I would suggest you all to please purchase the latest version of the book, as in the market there are many versions available, and we may have faced the difficulties regarding the content. Coming towards the paper pattern, the paper pattern of your second year class is going to be divided into 4 major sections. That is section A, that is of MCQs, and you will have 15 MCQs to be solved. And then in section B is divided into some portions of the C language. In section B you are going to have the questions regarding the C language application, C language output generation, C language concepts, and the section is of 21 marks, and you have to attempt 7 questions, and each question is going to be of 3 marks. And then we are having section number C, section C, that is also of 21 marks, and that is based on the database and its related queries, and in that section you are going to attempt 7 questions, and each question is going to be of 3 marks. And section number D is of 18 marks, in which you have to attempt 3 long questions. Each question is going to be of 6 marks. 6 marks can be subdivided into sections, and it can not be. If you are willing to see the model paper, you can visit the official website of FPISC, and you can download the model paper for your further concerns. Okay students, so coming towards to the block syllabus, you are going to have first 6 chapters in your first term examination, and these chapters are very important for your programming concepts. In this term you are going to study operating system, that is chapter number 1, and then system development life cycle, that is chapter number 2, object oriented programming in C++. You will start doing the programming things in chapter number 3, and then you are going to study the control structure in chapter number 4. Moving towards arrays and strings, this is chapter number 5, and then we are having chapter number 6, that is functions. Okay, so students, let's start chapter number 1, that is operating system. What is ऑपरेटिंग सिस्टम? आप सबको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज़ की हुई हैं, तो मैं दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करवा दूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है।
क्या चीज़ होती है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए या उसको रन करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर. It manages the computer's memory and processes as well as all of its software and hardware. It also allows users to communicate with the computer. Without an operating system, a computer user cannot run any program on the computer. It automatically loads in RAM when the computer is turned on. Operating system exists from the very first computer generation and keep evolving with time. ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके सिस्टम का। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, उसके अंदर होने वाले सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, उसके हार्डवेयर को, उसके सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ना सिर्फ इनको मैनेज करता है बल्कि इसका दूसरा काम ये भी होता है कि यह यूज़र को कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम के साथ जो है वो इनेबल कर रहा होता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपके कंप्यूटर के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर जो है वो उसका हार्डवेयर कंपोनेंट पड़ा हुआ है और उसमें विंडोज़ या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या काम करना होता है? ये ऑटोमेटिकली रैम जो है उसको लोड कर देता है और कंप्यूटर को टर्न ऑन कर देता है। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपका कंप्यूटर का कोई भी मॉडल हो, किसी भी एरा में अगर आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत जो है वो हमेशा रहेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कोई भी सिस्टम, कोई भी गैजेट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that controls the execution of application programs and acts as an interface between the user of a computer and the computer hardware. Every desktop computer, tablet and smartphone includes an operating system that provides basic functionality of the device. ठीक है जी। आपके पास जितने भी गैजेट्स हैं, आपके पास सेल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सब के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं होगा तो आपका कोई भी गैजेट, कोई भी सेल फ़ोन, कोई भी लैपटॉप जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है जी। कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, जो डेस्कटॉप सिस्टम्स हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? विंडोज़ है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम X एंड लिनक्स। ठीक है जी। नाउ अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना क्या है, ये क्यों इंस्टॉल किया जाता है, क्या इसका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो कि इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो हम लोग इसके टास्क देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है जी। ये पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखिएगा। ये क्वेश्चंस जो है पेपर में अपेयर होते हैं कि जी लिस्ट डाउन द परफॉर्म्स और टास्क डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स एप्लीकेशंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स इट। ठीक है। इसने आपके एप्लीकेशंस को, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को लोड करना है और उसको मेन मेमोरी में लेकर आना है ताकि ये काम कर सके। एंड देन पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। इसने ना सिर्फ मेन मेमोरी बल्कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को भी कंट्रोल करना है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अटैच कर रहे होते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको पॉपअप मैसेज दे रहा होता है कि जी एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एन एक्सटर्नल USB इज़ कनेक्टेड। ठीक है। आप कोई भी चीज़ अटैच करते हो तो वो आपको एक साउंड मैसेज के साथ जो है वो आपको एक इंडिकेशन सिग्नल जो है वो दे रहा होता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, USB ड्राइव्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अंदर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसके प्रॉपर फाइल्स एंड फोल्डर्स बना सकते हैं, उनकी कैटेगरीज जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ना सिर्फ आपके सिस्टम की चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करता है बल्कि अगर आपने उसके साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस भी अटैच की हुई है तो उनको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑपरेशंस क्या हैं, इनपुट के आउटपुट के, वो सारे के सारे इसने मैनेज करने होते हैं, इसने प्रॉपर मेंटेन किए हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ मल्टीटास्किंग टू हैंडल सेवरल टास्क एट द सेम टाइम सच एज रनिंग अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड अ वर्ड प्रोसेसर साइमल्टेनियसली। अब इसने क्या करना है कि अगर आपने एक टाइम के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं तो उसने ना सिर्फ उन एप्लीकेशंस को ओपन करके देना होता है बल्कि एज वेल एज उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सर पे होती है। Next point is perform network operations which enables a number of users to communicate with each other in a network environment and share computer resources such as CPU, main memory, hard disk, प्रिंटर, इंटरनेट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा इन सारे काम करने के अलावा इसने अगर आपका सिस्टम जो है या आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप जो है वो किसी नेटवर्क के अंदर जो है वो आ रहा है तो उस नेटवर्क के अंदर इसने इसको प्रॉपर फंक्शनल करवाने के लिए जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी होती हैं। वो क्या करना होता है इसने कि आपके कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की होती है, इसको प्रॉपर तरीके से शेयर करना, कनेक्ट करना और उनसे फंक्शंस जो है परफॉर्म करवाना आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब रिसोर्सेज क्या चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज में आपके सीपीयू की मेन मेमोरी आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, उसका प्रिंटर आ जाता है और एज वेल एज इंटरनेट जो है वो शेयर करना होता है। नेक्स्ट है डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर। इन केस के आपके सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट या कोई भी हार्डवेयर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो ये आपको इंडिकेशन सिग्नल पॉपअप मैसेज के साथ जो है वो बता रहा होता है कि जी फॉर एग्जांपल अगर आपके स्पीकर्स अटैच नहीं है या आपका कीबोर्ड अटैच नहीं है तो वो आपको बता रहा होता है कि जी आपका फ़लाँ कंपोनेंट जो है वो अटैच नहीं है, आप उसको अटैच करें ताकि आप उसको प्रॉपरली फंक्शनल कर सकें। ठीक है, इसके अलावा आपके सिस्टम को सिक्योर करने के लिए इसने इसको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो भी देने की कैपेबिलिटी इसके पास होती है। जब आप अपना लॉगिन बनाते हो या जब आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करके अपने कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। क्लियर? Now looking towards the commonly used operating system which are used throughout the world, the commonly used operating systems are, सबसे पहले आपको पिक्चर के अंदर DOS जो है वो ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद है हमारे पास विंडोज़ जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, हर एक घर में होता है नॉर्मली। उसके बाद है मैकिंटॉश OS X/OS2, ठीक है, और उसके बाद यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चार तरह की कैटेगरीज जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको पिक्चर में डिस्प्ले की हुई हैं, आप इनको देख लीजिए। जी, तो सबसे पहली कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो है डॉस। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड इन 1970s व्हेन माइक्रो कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। It was called disk operating system because the entire operating system was stored on a single floppy disk. It had text-based, also known as command line user interface. The user had to type commands to interact with the computer. ठीक है जी, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1970s में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसका सारा का सारा काम किसके ऊपर था, इसको जो भी कमांड्स दी जाती थी वो टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स होती थी और इसका दूसरा नाम क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर कुछ सी डॉस कमांड्स होती हैं जिन कमांड्स को यूज़ करते हुए हम लोग जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं बल्कि कोई भी एक्शंस जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। आपकी बुक्स के अंदर कुछ कमांड्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल रीनेम है, अगर आप अपनी किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम की कमांड यूज़ कर सकते हो। सीडी है फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी, ठीक है, कॉल्ड फोल्डर इन विंडोज़, इनको फोल्डर भी कहा जाता है। उसके बाद DIR है टू डिस्प्ले डायरेक्टरीज एंड फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। उसके बाद है डेल टू डिलीट वन और मोर फाइल्स, अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। कॉपी है कॉपी करने के लिए, एंड देन फॉर्मेट है फॉर्मेट करने के लिए किसी डिस्क को। द यूज़र हैड टू लर्न द बेसिक कमांड्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर इफेक्टिवली। डॉस कमांड्स जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि सारा का सारा इंटायरली बेस करता है टेक्स्ट कमांड्स के ऊपर, तो आपको इसको टाइप करके कमांड्स जो है वो देनी पड़ती थी, जिसके लिए आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है या आपके पास जो है वो कमांड्स की वोकेबलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको कमांड्स का आइडिया नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे और बहुत सारे काम जो है वो आपके कंप्लीट नहीं हो सकते। DOS was not user-friendly operating system. DOS commands were difficult to learn, memorize, and use of
use of novice computer users. DOS had been used successfully on microcomputers for many years, but it was replaced by more user-friendly operating system called Windows in the early 1990s. ठीक है जी. अब चूँकि मैंने उसको बता दिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. इसके लिए हमें कमांड्स को याद करना पड़ता था, मेमोराइज़ करना पड़ता था, लर्न करना पड़ता था कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है. तो ये सारा का सारा काम जो है वो इस तरीके से चल रहा था. लेकिन जैसे ही 1990s का एरा आया तो डॉस को जो है वो ओवरकम कर लिया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने. ठीक. So the next type is Windows operating system. Windows operating system was developed in mid of 1980s by Microsoft Corporation. It provides a graphical user interface GUI को अंडरलाइन कर लें. GUI stands for graphical user interface. इसमें पिक्चर्स होती हैं, आइकन्स होते हैं, कलर्स होते हैं, थीम्स होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, 4 कलर, बैक कलर, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अवेलेबल होती हैं. This is a very user friendly interface. The user does not have to memorize commands like DOS. It allows users to give commands to computers through icons, menus and buttons, etc. Today it is the most commonly used operating system on PCs and laptops, computers all over the world. Microsoft has released many versions of Windows over the years to enhance its user interface in computer technology. ठीक है जी. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको यूज़ किया जा रहा है और उसके डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं. सम पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ इन द पास्ट वर विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ XP एंड विंडोज़ विस्टा एक्सेट्रा. Clear? Then the third type of the operating system is Mac operating system. Mac operating system is a series of operating system developed by Apple Incorporations. Mostly it is installed on the Apple computers. ठीक है जी. ये particularly Apple computers के ऊपर ही install किया जाता है. ये particularly design किया जाता है उन्हीं Mac systems के लिए. The latest version is known as OS X. It is the 10th major release of the Mac operating system. It is the most secure operating system compared to Windows. ठीक है. अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें तो इसको अंडरलाइन कर लें कि हमारे पास अगर जो है वो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करनी है तो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है रादर देन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. मैक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क्स टुगेदर वेरी वेल विद मिनिमम फ्लॉज. मैक कंप्यूटर इज़ ऑफ हाई क्वालिटी बट ऑफ मोर एक्सपेंसिव दैन IBM's compatible computers. जी ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. A large variety of application software is easily available for Windows operating systems, whereas the OS X has very limited application softwares. The OS X is not a widely used operating system like the Windows. Windows चूँकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है, इसमें आइकन्स भी हैं, बटन्स भी हैं, कलर्स भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैक है वो बहुत कम यूज़ किया जा रहा है. लेकिन अगर हम लोग इसकी सिक्योरिटी वाइज जो है वो कंसिडरेशन करें तो ये बहुत अच्छा है. सिक्योरिटी रिस्क इसमें बहुत कम है और ये जो है ऑल्दो के एक्सपेंसिव है लेकिन इसकी जो है वैरायटी और इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसका जो वर्जन है वो आपको बहुत ही अच्छी जो है वो रिजल्ट्स दे रहा होता है. Okay जी students, coming towards to the last type of the operating system, last but not the least, that is Unix. Unix operating system was developed in early 1970s at Bell Laboratories Research Center by Ken Thompson and Dennis Ritchie. It was developed in C language. ठीक है जी. ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज में डेवलप किया था? C लैंग्वेज में किया था, जो कि आप लोग आज सेकेंड ईयर की पूरी क्लास के अंदर जो है वो C लैंग्वेज जो है उसको गो थ्रू करने वाले हैं. इट प्रोवाइड्स ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एंड बेटर सिक्योरिटी दैन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर रनिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेयरली हैव मैलवेयर अटैक. ठीक है जी. जो कंप्यूटर जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग के ऊपर जो है वो काम कर रहा है उसके ऊपर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर कोई मेलवेयर अटैक जो है वो हो सके. ठीक है. तो ये आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ अवेलेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स टू मेन फ्रेम. ठीक है. हर तरह की कैटेगरी, हर तरह की टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए जो है ये आपको अवेलेबल होगा. इट इज़ लेस पॉपुलर ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स ऑन विच विंडोज़ इज़ प्री इंस्टॉल्ड व्हेन दे आर सॉल्ड. ठीक है जी. तो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दिया जाता है जब इनको बेचा जाता है.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत हद तक समझ में आ गई हों। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए ऑल टाइम अवेलेबल होंगी। आपको आपकी क्लासेस के टाइम टेबल्स हैं वो भी मेंशन कर दिए जाएंगे, तो आप अपनी क्लासेस के टाइम्स के अंदर भी अपनी क्यूरीज जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, इस चैप्टर के एंड होने के बाद आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। क्या है इसका पर्पस, क्या है इसका, आपने आंसर करना है। और इसका आंसर आपने क्या करना है, लूज शीट्स के ऊपर इसका आंसर लिखना है। प्रॉपरली नीट एंड क्लीन तरीके से आपने इसको जो है राइट डाउन करके एंड देन सबमिट करवाना है। ओके, थैंक यू फ्रॉम टुडे। होप यू all understand this very well. I wish you all the very best. Have a very nice day. Thank you. Allah Hafiz.